મને ઋષિ હમણાં જ ગયા એકચ્યુઅલી લોકો થોડા સમય પહેલા, એટલે કદાચ જમીન આવશે હવે. હલો હલો ઓકે ચલો હલો 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 ઓકે. જો ઇક્વિલિબ્રિયમ રાઈટ. ઓકે હવે કાલે મેં તમને 2 ક્વેશ્ચન કરાયા હતા બરાબર, કેસી વાળા પહેલા, અને થોડા ક્વેશ્ચન હોમવર્કમાં પણ આપ્યા હતા. પહેલા એક કામ કરીએ, એક જે હોમવર્કનો ક્વેશ્ચન છે ને એ કરીએ, અને પછી હું તમને આમાં આખું સમજાવું છું. અલગ અલગ રીતે આ ચેપ્ટર થઈ શકે છે, હું તમને સમજાવું છું, એ તો તમે સમજો ઇન શોર્ટ, બરાબર છે? શું કરવાનું છે બરાબર? જો બીકોઝ આ જ બેટર છે તમારા માટે, હું તમને જે કરાવું છું એ જ સમજો ધ્યાનથી, શું કહું છું ખાલી. हाँ कैलकुलेटर काट ले, जो 7.2 देखो, और कुछ नहीं है, बोरिंग जरा भी नहीं होगा, कुछ एकदम सिंपल सिंपल, पहले हम सिंपल ही करते हैं बराबर, देखो, और फिर इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है इसमें, वो हम देखने वाले, पहले सिंपल सिंपल चीज कर रहे हैं, ठीक है? हम अभी देखो बका भणવું પડશે યાર, બરાબર કરીએ કરીએ, કંટાળો નહીં આવે, કરીએ બરાબર છે? જો બરાબર, હા તમને પણ નહીં આવે બરાબર. જો શું કહે છે, જો what is the value of kc, what is the value of kc, what is kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. देखो ओके, जो હમણાં ચાલુ થયું છે બરાબર. જો kc, what is kc રાઈટ, kc ઓકે. હવે જો અહીં લખ્યું છે k, હવે તમને ખબર છે k એટલે શું? કોન્સ્ટન્ટ. k એટલે કોન્સ્ટન્ટ બરાબર. કોઈ પણ આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ ઇક્વિલિબ્રિયમની, તો કોન્સ્ટન્ટ. તો અહીંયા તમને ક્વેશ્ચન તો આ સર c શું લખ્યું છે, c કેમ લખ્યું છે? તો c actually stands for concentration. what? and I told you concentration is in molarity. what? મોલ પર લિટર, મોલારિટી. મોલારિટી નો કોન્સેપ્ટ ચેપ્ટર નંબર 1 માં છે બરાબર, મોલારિટી kc. તો યાદ રાખજો k એટલે શું? ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ, એન્ડ c સ્ટેન્ડ્સ ફોર કોન્સન્ટ્રેશન, રિમેમ્બર ઇટ. પછી kp પણ આવશે, શું આવશે? kp પણ આવશે બરાબર છે. kp શું? kp. તો એ વખતે p સ્ટેન્ડ્સ ફોર પ્રેશર, શું? પ્રેશર. હું તમને વાત કરું છું નહીં. ઓકે હવે જો આ જે ક્વેશ્ચન છે ને, અત્યારે આપણે એ ક્વેશ્ચનની ફીલ લાવતા નથી, અત્યારે ફીલ નથી લાવતા, ફીલ વગર કરીએ જ ખાલી બરાબર. તમને માન લો કે તમારી સામે આવો ક્વેશ્ચન દેખાય અને તમને એક્ઝામમાં આ ક્વેશ્ચન 2 માર્ક્સનું પૂછાય, તો કઈ રીતે લખવાનું કે જેથી તમારે 2 માર્ક્સ આવી જાય, બસ વાત ખતમ. કાલે મેં તમને 2 ક્વેશ્ચન કરાયા હતા એવા જ, એમાંથી એકનો તો આન્સર રોંગ જ હતો, કન્ફર્મ રોંગ છે. બીજો આપણે કર્યો હતો, અને ત્રીજો આપણે એવો કરીએ છીએ આ ક્વેશ્ચન જસ્ટ એક પ્રેક્ટિસ માટે, અને પછી હું તમને સમજાવીશ કે વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ધીસ ઓલ ધીસ થિંગ્સ રાઈટ. તો જો એક્ઝામમાં તમને આ ક્વેશ્ચન પૂછાય, માન લો તો દેખો યુ કેન સી કે what is the value of Kc for the following equilibrium when the equilibrium concentration of the each substance is this much and this much. તો તમને દેખાતું હશે આ શામાં છે? મોલારિટીમાં. આને બોલાય શું? આવું હોય મેં તમને કીધું, યાદ કરો, concentration of SO2 in molarity, concentration of SO2 in whenever it is a square bracket, એનો મતલબ આવો થાય, ઓલવેઝ મોલારિટીમાં, યાદ રાખજો. તો આની કોન્સન્ટ્રેશન કેટલી છે મોલારિટીમાં? તો યુ કેન સી 0.60 મોલાર, એટલે કે મોલ પર લિટર, આટલી કોન્સન્ટ્રેશન છે બરાબર. એ રીતે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ O2 તમને આપ્યું છે, અને કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ SO3 તમને આપ્યું છે, અને તમારું રિએક્શન આવ્યું તમને દેખાતું હશે, SO2 plus O2 will give us SO3. પહેલા તો એક્ચ્યુઅલી ખાલી આટલું લખવાનું, આ SO2 એટલે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, શું ની પ્રોસેસ જ્યારે ઓક્સિજન ગેસ સાથે થશે તો it will give me SO3, and this is the reversible process, right? Okay, and reversible process can be in the equilibrium, okay, અને છે જ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે. ઓકે, અરે એ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં પ્રોસેસ છે એનો મારે શું ફાઇન્ડ કરવાનો છે? kc, એટલે કે ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો પહેલા તો જે પણ ઇક્વેશન આપ્યું હોય એને તો કરવાનું તમારે બેલેન્સ કરવાનું. શું કરવાનું? બેલેન્સ કરવાનું. સિમ્પલ બરાબર છે, સિમ્પલ. જો બેલેન્સ કઈ રીતે કરીશું? ઓક્સિજન દેખો, આ બાજુ કેટલા ઓક્સિજન છે ટોટલ? આ બાજુ કેટલા છે? ઓનલી 3. તો એક વસ્તુ કરવી પડશે, આગળ 2 તો મૂકવા જ પડશે. આવા કેટલા થઈ ગયા? આ બાજુ 6 થઈ ગયા. હવે આ બાજુ 6 તો થાય, પણ જોડે સલ્ફર 2 થઈ ગયા. જો આગળ 2 મૂકી દો, જો ઘણો ઓક્સિજન થઈ ગયું બેલેન્સ. જો 2 2 4 પ્લસ આ 2 6, અને આ બાજુ પણ, અને સલ્ફર 2 અને સલ્ફર 2. તો ઇક્વેશન ઇઝ ટોટલી બેલેન્સ્ડ. આટલું આવડે કે ના આવડે? માન લો કે તમને આપ્યું ના હોય તો પણ યુ કેન ડુ ઇટ.
આટલું કર્યા પછી સિમ્પલ આપણે મેં તમને કીધું પ્રમાણે જસ્ટ ખાલી હમણાં સમજીએ આપણે એટલે ખાલી લખવા માટે શું લખવાનું એ સમજી લઈએ. તો મેં તમને કાલ કીધું યાદ કરો, ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ Kc ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું? ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ શું અને રેસ ટુ n. આ n એટલે શું કહેવાય? એનો કોએફિશિયન્ટ શું કહેવાય? તો જો અહીંયા લખું છું કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ SO3 રેસ ટુ શું? કારણ કે આનો કોએફિશિયન્ટ 2 છે તો તમે ડિવાઈડ બાય શું? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ O2 અને આની આગળ 1 જ છે ને એટલે રેસ ટુ 1 અને SO2 की કોન્સન્ટ્રેશન રેસ ટુ 2. બોલો ક્લિયર થયું કે ના થયું? સિમ્પલ છે, કશું નથી. જો આટલું લખતા આવડે ને એટલીસ્ટ આવું કેમ આવ્યું, શું છે, આવું કેમ કરીએ છીએ એવું તમને સમજાવું છું, ડોન્ટ વરી. બરાબર, પણ એટલીસ્ટ આ તો આવડે કે ના આવડે એક્ઝામમાં કરતા ચાલો, કારણ કે આવો ક્વેશ્ચન આપણે પૂછાશે. બરાબર છે, અને આગળ પણ જરૂર પડશે. તો જો SO3 ની કોન્સન્ટ્રેશન કેટલી જો તો 1.90 મોલર અને O2 ની છે 0.82 મોલર. મૂકી દો આગળ. तो SO3 એટલે 1.90 रेज टू 2 डिवाइड बाय O2 का कितना है 0.82 અને SO2 कितना है 0.60 का स्क्वायर. पड़ी खबर आ वस्तु? चलो करो तो 1.90 into 1.90 डिवाइड बाय 0.82 डिवाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 0.6 12.22 right? Okay, so 12.22 is what your equilibrium constant Kc. 12.22 is your what? Equilibrium constant Kc. Remember this thing, Kc is your 12.22. બરાબર છે, આટલો Kc આવ્યો, એ જ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો હતો. બરાબર છે, આની અંદર એક જ સેકન્ડ. આન્સર વેરીફાઈ કરી દો ખાલી, જસ્ટ એક વખત ખાલી. ઓકે, બસ તો 1 મિનિટ ખાલી ઉભા રહેજો. ઓકે, આ નંબર 2 થઈ ગયો રાઈટ. પછી મેં તમને આઈ થિંક નંબર 4 આપ્યો તો કરવા માટે. તમે લોકોએ કર્યું કે નહીં કર્યું હોમવર્ક? नहीं કર્યું ને? नहीं किया? किसने किया होमवर्क? जस्ट पूछ रहा है, किसने किया? आपने भी नहीं किया? वाह, तुमने भी नहीं किया? किसने नहीं किया? ओ अभी तो करो, याद करो, याद આવ્યો કે ના આવ્યો? વાત હતા ને છેલ્લે ગયા ને તારે ક્લિયર કીધું તું મેં. કઈ નહીં, ચાલો છોડો, નથી યાદ શું કરું બોલો. તમારા મગજમાં તો ઘૂસવાનું નથી. કઈ નહીં, ચાલો ઠીક છે. તો સારું થયું ના 7.2 કર્યો તો. તો જો 7.2 ની અંદર કેટલા હોય છે કે કોન્સ્ટન્ટ 12. એકચ્યુઅલી છે ને મને ખબર છે તમે લોકો હજુ છે ને તમારા ફૂલ ફેસમાં તો એટલે તમારા ફૂલ ફેસ તો ખબર નહીં આ જ હશે કે નહીં, પણ તમારા લેવલ પ્રમાણે હું તમને જે આ કરાવું છું ને એ જ બરાબર છે. સારું થયું કે પહેલા તમને આનો મિનિંગ ના સમજાવ્યો, નહીં તો તમે સુઈ જાત, પૂરેપૂરા સુઈ જાત. બરાબર, તમે લોકો આ કરતા આવડી ગયું, આ વસ્તુ કરતા આવડી ગઈ, કેસી કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવા આવડી ગયું. ઓકે, ખાલી યાદ રાખજો પહેલા કેસી નો આન્સર કેટલો આવ્યો હતો? પહેલા કેસી નો આન્સર કેટલો આવ્યો હતો? એટલે એ તો યાદ ના હોય, હવે એ તો યાદ ના હોય, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. પણ સમથિંગ કંઈક 0.6 કે હોય કે તો યાદ કદાચ 0.622 કદાચ હતો. પછી બીજા કેસનો ઘણો બધો મોટો આન્સર હતો, અને આ કેસનો કેટલો આન્સર છે? 12.22. હવે જો અલગ અલગ આન્સર છે કેસીના. બરાબર, ચાલો યાદ રાખજો. બરાબર, ચાલો હવે આપણે આ ક્વેશ્ચન જોઈએ 7.4 જોઈ લઈએ ફટાફટ, પછી આપણે તમને આગળ એક વાત કરું, ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત પછી કરીએ આપણે. તો લખવાનું છે રાઇટ ધ એક્સપ્રેશન ફોર ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ Kc ફોર ધ ફોલોઇંગ રિએક્શન્સ. બરાબર, જો પહેલું રિએક્શન આ છે, આના માટે લખવાનું તમારે. બોલો કઈ રીતે લખીશું આના માટે? Kc નું ઇક્વેશન કઈ લખવાનું છે? જસ્ટ ખાલી આવડે ને? જો અહીં લખો ખાલી, આ તમે યાદ રાખો. પહેલું Kc ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું? તો ભાઈ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NO का स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज टू 1. बड़ी खबर तो करिए पाको ने डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl का स्क्वायर. बड़ी खबर. नंबर 2 નું જેને પૂછો એ આન્સર આપશે મને.
बोलो तो, आप बताओ तो, अंशिका। क्या देखो यहाँ में केसी, व्हाट इज केसी? हाँ बट कौन सा कांस्टेंट? केसी मतलब कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या? यहाँ लिखा है देखो। ओके, हाँ बोलो। You should say this way, concentration of CO in molarity, concentration of CO in molarity raised का square into concentration of NO2 in molarity raised to 4 1 divided by NO3 twice in molarity raised to 2. Agree? चलो सिंपल है ना भाई, अभी किसी को पूछ सकता हूँ मैं, और ऐसे ही बोलना है आप लोगों को, ठीक है? प्रैक्टिस करो इसको बोलने की, ये क्वेश्चन इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या बता रहा हूँ मैं आपको, डोंट वरी। केसी मुझे भी ऐसा पढ़ाना पसंद ही नहीं है, सीधा रट्टा रट्टा मार के बस केसी बोलो। इसमें कौन बताएगा कैसे लिखेंगे इसमें? वो तो वैसे बहुत सिंपल है, ठीक है? क्या लिखेंगे चलो मैं बता देता हूँ क्या लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, सब बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ in molarity into raised to 1 into concentration of C2H5OH in molarity raised to 1 divided by concentration of CH3CO C2H5 in molarity raised to 1 into concentration of H2. Can anyone give me the what is the name of this compound? मैंने आपको ऑर्गेनिक में सिखाया था, ये लिखना आ गया, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है? Can anyone give me the name of this compound? CH3COO C2H5, याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी कराया था ना आपको, एलिफेटिक वाला, उसमें था ये नाम। फिर ये भी पता होना चाहिए, इसका तो पता होगा आपको, ये तो पता होगा, ये पता होगा। बताओ ये क्या है, ये इसका नाम क्या है बताओ चलो। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, इसका स्ट्रक्चर। नोट और पेन है ना आपके हाथ में? मुझे इतना बता दो कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई तो होगा, फंक्शनल ग्रुप है ना इसमें, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नहीं आइडिया आ रहा है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नहीं आइडिया आ रहा है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? चलो देखो समझना, किसी को भी नहीं आइडिया आ रहा? देखो C डबल बॉन्ड O O, फिर यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन, ये कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। एग्री और नो? देखो क्या है ये, हाँ ये क्या है, ये एस्टर है, क्या है ये? एस्टर है, देखो ये एस्टर है ना, ये देखो C डबल O, याद करो ये COO, ये एस्टर है क्या? ये इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मैंने सिखाया था आपको, याद करो। मेन कार्बन चेन पकड़ो, दूसरी चेन पकड़ो, याद करो क्या होगा इसका नाम? बस देखो यही होता है बेसिक्स, ये पता होगा ना तभी मजा आएगा 12th में करने का, बाकी तो बस ऐसे ही अंदर गोल गोल ऐसे घूमते रहोगे। ये मेन कार्बन है, उसके साथ ये कार्बन की चेन ऐसी है, और ये पूरा अलग है। कितने कार्बन? 2 है, 2 कार्बन मतलब कि इथाइल, और ये 2 मतलब कि इथेन, और पीछे O8, क्या O8, तो इथाइल इथेनोएट, क्या? देखो याद करो, याद आया कि नहीं आया? या तो फिर इथाइल एसिडेट, क्या? इथाइल एसीटेट, हाँ ये 2 नाम हो गए इसके, इथाइल इथेनोएट, ये मैंने कराया था आपको, इथाइल इथेनोएट या तो फिर इथाइल एसिडेट, ये 2 नाम हो गए, ठीक है? इथाइल इथेनोएट या तो इथाइल एसिडेट, बराबर कि नहीं? रिमेंबर ये 2 नाम हो गए, ठीक है? क्लियर है ये? बोलो यहाँ तक, ओके चलो ठीक है। वैसे जरूरत नहीं थी अभी इसके, बट ऐसे ही देखो, तो जब इसमें पानी डालेंगे तो क्या ये क्या बन जाएगा? ये इसका नाम क्या है? फटाफट फटाफट, नो आइडिया?
छोड़ दिया नहीं रिवाइज करना। कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, तो क्या होगा ये, 2 कार्बन है ना, कितने कार्बन है, 2 कार्बन मतलब क्या होता है, इथेनोइक एसिड क्या होता है, फिर ये क्या है, इथेनॉल, क्या है ये, मुझे लग रहा है कि मैंने किसी और बैच को पढ़ाया था, आपको नहीं पढ़ाया था, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो ना, बराबर, ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार इस चीज को देख रहे हो। ठीक है चलो, बराबर, पता होना चाहिए ऑन द स्पॉट। ऑर्गेनिक चीज ऐसी है ना, देखो साइंस में थोड़ी बहुत चीज ऐसी होती है ना जो कि आप बोल नहीं सकते कि मुझे याद नहीं है। एक ऑल एसटीसी उसका एग्जाम्पल एक ये है, उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे रिवाइज करना पड़ेगा सर, नो। चलो ऑक्सीडेशन नंबर के जो मेथड, बैलेंसिंग मेथड है बराबर, दो, ये 2 मेथड देखे ना हमने, वो चलो आपने थोड़े एक वीक प्रैक्टिस नहीं किया, आप भूल गए, समझ सकता हूँ मैं सर, मुझे देखना पड़ेगा एक बार 15-20 मिनट देखना पड़ेगा, फिर मैं रिकॉल कर दूंगा, आ जाएगा, एग्री। बट ऑल एसटीसी यू कैन नेवर फॉरगेट बिकॉज इट इज अ बेसिक, इट इज कॉल्ड बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, यू कैन नेवर फॉरगेट, यू कैन नेवर फॉरगेट द नेम्स एंड ऑर्गेनिक, ठीक है, बिकॉज आपको नेम जब याद हो गए उसके बाद तो आपको ये रिएक्शन याद होगा। ये रिएक्शन में क्या है पता है, जब एस्टर को पानी के साथ मिलाते हैं ना तो मुझे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। आपको तो याद ये रखना है, समझ में आया? अभी आपको नाम में ही कंफ्यूज हो गया तो आप तो इतनी बड़ी बड़ी चीज कैसे याद रख पाओगे बताओ। तो नाम्स आपको ऑन द स्पॉट कभी भी आने चाहिए, कभी भी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको भूलना नहीं है, रोज के रोज करना है उसको, बराबर, ठीक है, करते रहना। वो आपको लिखना आ गया इसका, कैसे लिखना आ गया। चलो अभी देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 जो है उसका सिंपल है, नंबर 4 का भाई सिंपल है, क्या होगा, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeOH थ्राइस रेज टू 1 बराबर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe प्लस 3 इन मोलरिटी। देखो F यहाँ पे तो आगे तो एक ही है ना, देखो मैं लिख रहा हूँ Kc इज इक्वल टू क्या, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeOH थ्राइस इन मोलरिटी, यहाँ पे आगे 1 रेज टू 1, 1 लिखो कि ना लिखो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, डिवाइड बाय क्या, प्रोडक्ट की साइड ये 2 चीजें, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe प्लस 3 in molarity raised to 1 into concentration of OH minus in molarity raised to 3। सर ये हो गया इसका केसी, ठीक है। और नंबर 5 भी ऐसा ही कुछ है, नंबर 5 बराबर, ये कैसे नंबर 5 है, ठीक है। चलो इसमें क्या होगा केसी, इसका इक्विवेलेंट क्वेश्चन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नो 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 2IF5 कौन बोला, concentration of IF5 raised to 2 divided by I2 into concentration of F2 raised to, देखो ये 5 है ना यहाँ पे, तो concentration of F2 raised to 5, सिंपल है कि नहीं ये। चलो ये तो लिखना आ गया, ओके, तो 7 पॉइंट ये तो हो गया, ठीक है। चलो ओके, अभी बात करते हैं, समझना ध्यान से, देखो देखो पहले मैं थोड़े मैथमेटिकल बात ही कर रहा हूँ, मैथमेटिकल बात ही कर रहा हूँ, रिमेंबर इट। आपको वो लिखना आ गया, मुझे पता है वो ये जो आपके दिमाग में कैसे डालना है। ये 2 इंटेंशन हमारे, एक इंटेंशन है हमारे मार्क्स नहीं कटने होने चाहिए, और दूसरा इंटेंशन जो भी ये जो चीज है, ये केसी जो है वो कुछ तो बता रहा होगा ना हमको, कुछ तो बता रहा होगा ना। जैसे कि भाई वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, हम कोई भी इक्वेशन बैलेंस करते हैं, रेडॉक्स इक्वेशन में बैलेंस करना सीखा हमने, क्यों करते बैलेंस, क्यों करते हैं, मार्क्स लाने के लिए, मार्क्स लाने के लिए, हाँ एक्सीलेंट, दोनों तरफ मास सेम होना चाहिए, जितना मास, तो बस ये आपको वाई पता है ना क्यों करते हैं, जैसे कि जितना मास रिएक्टेंट है उतना ही मास, क्योंकि भाई कोई भी केमिकल में कोई भी मास पैदा नहीं होता या कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, ऐसे ही चार्ज भी, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो चार्ज है रिएक्टेंट साइड उतना ही चार्ज प्रोडक्ट साइड होगा, क्योंकि कोई भी मास जो है, कोई भी चार्ज वो पैदा भी नहीं होता या तो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, हमको पता है ना, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो केसी है ना, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है, उसकी भी कुछ अहमियत है, बट वो क्या है वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा कि देखो ऐसा ऐसा किया था, उसका इंपॉर्टेंस ये, समझ में आ रहा है, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट आपका बना रहे, मैं उल्टा जा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो समझना ध्यान से, वो बताऊंगा, डोंट वरी, बहुत
अच्छे से पता है, बराबर, बहुत ही डीप में है वो, ठीक है, बताऊंगा आपको। चलो अभी देखो समझना, अभी आपके कल 7.1 और 7.2 क्वेश्चन हो गए थे जिसमें आपको दोनों में कैसी फाइन करना आना चाहिए, बराबर। चलो अभी एक चीज यहाँ पे बात करेंगे, समझना, ध्यान से समझना, ये जो चीज बात करने वाले उसको ध्यान से समझना। देखो ओके, यहाँ पे कुछ लिखा है, दिख रहा है आपको, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। चलो आप खुद दिमाग लगाना, मैं आपके 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 अंदर से आंसर निकल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और अंदर से इसलिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक तरफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। और आपके सामने में दोनों के एक एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, और आपको अंदर से आंसर देना है कि सर ऐसा है क्या, ठीक है, क्या ऐसा कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, इसमें ऐसा कुछ, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, हेट्रोजीनियस का, और ये एग्जाम्पल है होमोजीनियस का, ठीक है, ये एग्जाम्पल है होमोजीनियस का। आई होप यू कैन सी द एग्जाम्पल्स क्लियरली। बोलो क्या डिफरेंस आपके हिसाब से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसमें दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, बराबर। देखो दोनों में एक तो कॉमन इक्विलिब्रियम तो दोनों में भाई, तो इसको डिफरेंस बताना एटलीस्ट, दोनों में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम तो हुआ ही है, बट एक होमोजीनियस है एक हेट्रोजीनियस है। और आप इस चीज को ध्यान से देखो दोनों को, और मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस। बोलो बोलो, जब मैं पूछ रहा हूं तो आपको फेंकने की छूट, फेंकने की छूट इसलिए ताकि आपको अपनी गलती याद रहे कि ये जब सर ने ऐसा पूछा था ना तो हमने ऑब्जर्व नहीं किया था, और आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपका ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप हो, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, बराबर। चलो बताओ एग्जैक्टली क्या, और हेट्रोजीनियस में तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बोलने के पैसे लगते हैं, थोड़ा सा डीप में बात करो थोड़ा, मतलब कि यदि सही है, आप बोलोगे आयुष क्या सोच रहे हो, ओके हमारे चलो इसमें चार्ज ऐसा सोच रहे हो आप, ठीक है, इसमें चार्ज नहीं है, ओके। नहीं नहीं मैंने बोला ना, कुछ भी आप बोल सकते हो इसमें, मैं आपको थोड़ी मतलब ये, और आपको आपकी गलती होगी तो याद रहेगा यार, इसको ऐसा मत सोचो, ठीक है, लो इसमें 4 ले आया ले बस। हाँ हाँ इसलिए मैं कर रहा हूँ ये, मैं इसीलिए कर रहा हूँ ये ताकि आपको याद रहे, आप और ऑब्जर्वेशन तो डेवलप करना है ना आपको, साइंस स्टूडेंट हो आप यार, तुम्हारा आंसर सही है गलत नहीं है, बराबर। एग्जैक्टली मतलब कि स्टेट अलग अलग हो सकते हैं, समझो बात को, समझ में आया। देखो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन करना है आपको, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद प्रॉपर्ली बोलना भी है, कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, बराबर, साइंस स्टूडेंट के अंदर, समझ में आया, ये कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए ना, सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या, दिमाग लगाना थोड़ा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गैस है, ये भी गैस है, मतलब कि दोनों रिएक्टेंट कैसे है आपके, गैसेस फॉर्म है, और प्रोडक्ट भी सेम। यहाँ पे देखो ये एक्वियस, ये भी एक्वियस, तो ये भी, मतलब कि जो फेस या जो स्टेट रिएक्टेंट का है, और रिएक्टेंट में भी सारे के सारे रिएक्टेंट्स का है, वही सारे के सारे प्रोडक्ट का है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे आपके एक रिएक्टेंट सॉलिड में है, एक रिएक्टेंट यहाँ पे कुछ लिखा होगा समथिंग एक्वियस में, पता नहीं क्यों लिखा है यहाँ पे, कुछ मिस हो गया होगा, यहाँ पे एक एक्वियस में एक एक्वियस में, देखो मतलब ये अलग अलग हो गया ना। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो कोई भी केमिकल रिएक्शन में, और उसमें यदि सारे के सारे जो कंपाउंड्स है उसके फिजिकल स्टेट यदि एक ही हो, तो इट इज विच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एक ही मतलब कि सारे के सारे, देखो यहाँ पे सारे के सारे गैस है, यहाँ पे सारे के सारे एक्वियस में, समझते हो आप, पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन, नमक को पानी में डाल दो क्या बन जाएगा, एक्वियस बन जाएगा। फील आ रही है कि नहीं आ रही, ओके। यहाँ पे देखो ये सॉलिड में, ये कुछ यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ होगा समथिंग, वैसे नहीं, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ पानी डाला, जस्ट ऐसा पानी डाला, ठीक है, जस्ट, तो ये हो गया अलग अलग हो गया, Ca+2 और CO ऐसा अलग हो गया। तो देखो यहाँ पे एक सॉलिड था, फिर क्या हो गया, एक्वियस हो गया, तो यहाँ पे सारे के सारे फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, इसलिए ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो आई होप यू कैन रिमेंबर दिस थिंग्स नाउ, राइट। चलो ठीक है, ओके। अभी हम बात करने वाले हैं टेम्पररी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, किसके बारे में,
तो जब भी आप ये वर्ड सुनो ना, सॉरी होमोजेनियस, किसके बारे में, सॉरी पहले बात करेंगे इसकी, अच्छा होमोजेनियस, अच्छा ओके सॉरी बराबर। तो पहले बात करेंगे किसकी हम, होमोजेनियस। देखो ऊपर यहाँ पे जो लिखा है ना, आई एम नॉट स्किपिंग इट, रिमेंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्किपिंग इट, बराबर करना ही है, काम का है, बट ये फ्लो में बढ़ो आगे बेटर रहेगा, ठीक है। देखो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या, जैसे ही आप वर्ड सुनो ना होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि हाँ जितने भी मतलब कंपाउंड हो गए केमिकल रिएक्शन में, वो सारे के सारे का फेस कैसा होगा, सेम होगा, या तो सारे गैस में, या तो सारे सॉलिड में, या तो सारे लिक्विड में, या तो सारे एक्वियस में। ओके चलो, अभी हम क्या करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द गैसियस सिस्टम क्या, ओके देखो इसको समझो। चलो एक ऐसे सिस्टम है जो कि पूरी गैसियस है, पूरी गैसियस का मतलब क्या, उसमें रिएक्टेंट्स भी गैस में है, और तो कहना है से इट इज अ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, पक्का, एग्जैक्टली तो गैसियस सिस्टम इज, गैसियस मतलब क्या, उसमें रिएक्टेंट भी गैस में, और मतलब कि दिस गैसियस सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम सिस्टम, समझो। इसलिए इसको इसके अंडर में कंसीडर किया है, होमोजेनियस के अंडर में, यहाँ पे 7.4 है, यहाँ पे 7.4.1 है, एग्री। और मुझे क्या करना है इसके लिए, इस पर्टिकुलर के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ में आया, ये बराबर डिफरेंस समझ में आया इसका, एक ऐसी सिस्टम जो कि पूरे के पूरी कौन से फॉर्म में, गैसियस, मतलब कि ये एग्जांपल दिख रहा हो आप, तो उसके लिए देखो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए मैंने अब तक क्या फाइंड किया था, Kc, व्हाट इज Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी भी मैं क्या फाइंड करने वाला हूँ, कांस्टेंट ही फाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। बट नाउ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा अभी, बराबर। वो डिफरेंस क्या होगा वो हम इस टॉपिक में देखने वाले, बराबर। बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे जो कंपोनेंट है, मतलब जो कंपाउंड है वो कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, ठीक है। ओके चलो समझना, ध्यान से समझना, देखो इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल ही है, देखो चलो। आपको एक चीज पता है, जब मैं कोई भी कॉन्सेंट्रेशन को मतलब ऐसे लिखता हूँ, ऐसे ब्रैकेट में, तो व्हाट इज इट कॉल्ड, मतलब कि चलो पूरा लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी, समझना एकदम सिंपल है, अंदर से ही आंसर आएगा, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी, ठीक है। चलो ओके, अभी आप दिमाग लगाओ, ये जो कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी है, बराबर, उसके लिए नॉर्मली आपका जो फेज है वो कौन सा होना चाहिए, यू शुड से एक्वियस, सर कौन सा होना चाहिए, आप दिमाग लगाओ ना, एक्वियस होना चाहिए ना, बिकॉज यू से इतने मॉल ऑफ वाटर में इतना मोल ये डिजोल्व हुआ, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था ना। तो दिस नॉर्मली दिस कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी इज एप्लीकेबल फॉर मोस्टली फॉर एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है ओके समझना। और आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी का मतलब क्या होता है, तो भाई मोल पर लीटर, क्या मोल पर, तो लीटर का एक तरह का वॉल्यूम है, क्या है ये वॉल्यूम है, और मोल तो पता है आपको एन, नंबर ऑफ मोल एन, ओके इतना दिमाग में रखना, ठीक है। अभी मुझे एक फॉर्मूला पता है गैस के लिए, आइडियल गैस याद करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एन बाई वी, क्या चाहिए देखो, बिकॉज मोलरिटी का मतलब होता है एन बाई वी, तो ये एन दिख रहा है, ये वी दिख रहा है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी दिख रहा है, ये पी अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है सी आर, ठीक है चलो सही है, ठीक है ओके। तो देखो ये हो गया पी अपॉन आर टी, और ये जो एन अपॉन वी है ना, एन अपॉन वी, उसी को फिर क्या बोलेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी बोलेंगे। तो यही, क्योंकि देखो एन अपॉन वी, एन मतलब नंबर ऑफ मोल इन गिवन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज व्हाट, मोलरिटी, आपको पता ही है, ठीक है बराबर, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम। मैं आपको एक सिंपल, एक थोड़ा सा एक रिकॉल, 2 मिनट रिकॉल कर दे, फिर इसको समझते, बराबर। देखो समझना, मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरा जो सॉल्यूशन है, मेरा जो सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन है, मान लो कि वो 1000 ml का है, कितना है टोटल सॉल्यूशन, क्या टोटल सॉल्यूशन 1000 ml का है, ठीक है। और उस टोटल सॉल्यूशन में मान लो कि मैंने NaCl के 2 मोल, कितने 2 मोल, मतलब कितने ग्राम हो गए NaCl के, चलो NaCl छोड़ो, NaOH ले लो, NaOH के 2 मोल है, मतलब कितने ग्राम हो गए, याद करो, 1 मोल मतलब कि 40 ग्राम होता है, याद करो NaOH का, आपने 2-3 दिन पहले ही किया था, याद है कि नहीं याद,
एन कैसा आया, तो एन का 23, ऑक्सीजन का 16 और H1 ऐड करो 40 आएगा। मैंने कितने ग्राम डाले, 80 ग्राम। 80 ग्राम मतलब कितना हो गया, 2 मोल। 2 मोल कितने में है, 1000 ml। 1000 मतलब क्या होता है 1, तो 1 लीटर में कितने मोल है, 2 मोल है। मतलब कि इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 2 मोलार। कितनी, समझ में आया ये, 2 मोलार मतलब कि 2 मोल है किस में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसको बोलते हैं मोलारिटी। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक्जेक्टली फॉर्मूला कैसे फाइंड किया मोलारिटी का, तो ऊपर आपने लिखा मोल, नीचे आपने लिखा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वही तो कर रहे, देखो टोटल वॉल्यूम, हाँ यहाँ पे गैस का है, ठीक है, और ऊपर क्या है यहाँ पे, तो उसका मोल है। तो मोल अपॉन वॉल्यूम विल गिव यू व्हाट, मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी। ओके, तो भी देखो इसको, इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ कि P ये प्रेशर है ना, प्रेशर इज इक्वल टू क्या, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी R इंटू टी। ओके, अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यदि हम बात करें, एक ही सेकंड, यहाँ पे प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन मोलारिटी। ठीक है, P इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, B इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो यही इक्वेशन को दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, यही इक्वेशन को क्या करना है आपको, दिमाग में रखना है, बराबर। कैसे इसका यूज क्या है बता रहा हूँ मैं आपको, बराबर। देखो, ओके चलो, इस इक्वेशन को आप दिमाग में रखो, क्या प्रेशर, P मतलब क्या, प्रेशर, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी, R तो पता है ना, आइडियल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। ओके चलो, इतना समझ में आया। ओके, अभी ये इक्वेशन क्या रखना, P इज इक्वल टू एम आर टी रखना, P इज इक्वल टू एम आर टी, जहां पे M क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी। ओके, एम आर टी। ओके, अभी मुझे क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। चलो, तो अभी इसके लिए मैं देखो समझना, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, यू कैन सी दिस एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन द बुक इटसेल्फ, यू कैन सी दिस एग्जांपल, बराबर, यू कैन सी दिस एग्जांपल। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये होमोजेनियस का है कि हेटेरोजेनियस का, ऑफ कोर्स होमोजेनियस, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, क्योंकि सारे के सारे कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में। और मुझे क्या फाइंड करना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके पर्टिकुलर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आई विल यूज हियर व्हाट, Kp, व्हाट, but when I use, I told you, when I use Kc, I will have to use concentration, I told you starting only. And when I use Kp, then I will have to use pressure, what, I will have to use pressure, but that is the difference, right? Okay, और एक्चुअली मैं प्रेशर यूज करना क्यों प्रेफर करता हूँ, बिकॉज कोई भी पर्टिकुलर गैस की कॉन्सेंट्रेशन जो मुझे मिलेगी ना, उससे इजीली मुझे क्या मिल जाएगा, उसका प्रेशर। अब दिमाग लगाओ, कोई भी जैसे कि कोई कंटेनर है, उसमें कोई गैस का प्रेशर मेजर करना है, तो व्हाट यू विल डू, सीधा ही क्या करो, एक बोरोमीटर जो होता है ना, उसके ऊपर कनेक्ट कर दो, जैसे कि आपको टायर के अंदर कितना प्रेशर है हवा का, पता है ना, ऐसे चेक करते हैं अंदर डाल के, ऐसे सीधा दिख जाता है कि भाई इतना प्रेशर है। तो प्रेशर को चेक करना इज नॉट अ बिग डील। ओके, और आप सीधे सीधे बात दिमाग लगाओ, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी, उस पर्टिकुलर गैस की, उसका उसका प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, एज पर दैट डाल्टन हमने देखा था, याद करो। तो अभी यहाँ पे ये जो केपी में लिखूं ना, तो देखो कैसा हो जाएगा इक्वेशन, समझना ध्यान से। प्रेशर क्या यहाँ पे हो जाएगा, किसका प्रेशर, तो भाई HI किसका, रेस टू 2। समझ में आया ये डिफरेंस। देखो अब तक मैं यहाँ पे कैसा ब्रैकेट कर रहा था, स्क्वायर का ब्रैकेट, कैसा, अभी कैसे किया, जस्ट और जस्ट ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट किया। देखो क्यों, बिकॉज नाउ दिस HI की कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इन द मोलारिटी, राइट नाउ इट इज इन द प्रेशर। समझ में आया, एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन Kp हियर। ओके, बराबर, समझ में आया ये, डिवाइड बाय I2, सेम रूल तो वही है, ठीक है, और यहाँ पे इनटू करके H2 क्योंकि यहाँ पे आगे 1 ही है ना। बोलो क्लियर हुआ ये। चलो, अभी ये क्या, ये जो मैंने ऐसे लिखा ये, चलो एक इस ये क्या है एक्चुअली, ये है क्या, प्रेशर है ना, ये क्या है, ये है प्रेशर, सोचो दिमाग लगाओ ये। जो यहाँ पे ऐसे लिखा है प्रेशर, प्रेशर करके लिखा है, तो मैं भी लिख देता हूँ। चलो, ये क्या है, प्रेशर ऑफ इसका प्रेशर, ये इसका प्रेशर, और ये इसका प्रेशर। और मैंने आपको बताया प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, MRT। देखो MRT है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रेशर का फॉर्मूला MRT है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं M, मोलारिटी, किसकी मोलारिटी, HI की, इंटू क्या, R इंटू टी। देखो अब दिमाग लगाओ, देखो ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MRT। अभी जब आपको प्रेशर फाइंड करना है, मान लो HI का, तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो किसकी होनी चाहिए, और ये R और T तो बेचारे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू R इंटू टी, और उसका हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, सोचो ये स्क्वायर है ना,
डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, प्रेशर I2। बोलो क्या लिखो उसके लिए, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे हम बिकॉज इट इज इन मोलरिटी ऑलरेडी, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ I2, एग्री, I2 इनटू RT ब्रैकेट ओवर, राइट, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलरिटी इन H2 एंड देन RT। क्लियर हुआ ये। तो देखो यहाँ पे RT का स्क्वायर, ये भी RT मतलब ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये RT का स्क्वायर, ये RT और RT का स्क्वायर कट हो जाएगा, तो क्या बचा अल्टीमेटली, और इसको ऐसा लिखते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इन मोलरिटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इन मोलरिटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इन मोलरिटी। और यही होगा, ये Kp था आपका, और Kc भी तो यही होता है ना, मतलब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, Kp और Kc कैसे हुए, दोनों इक्वल हुए, कैसे हुए दोनों, देखो इक्वल हुए, मतलब कि कहना है Kp और Kc हमेशा इक्वल हो गए, नो वी कैन नॉट से, नो वी कैन नॉट से, समझ में आया कि नहीं आया। अभी इस केस में सेम हुए, क्या इस केस में क्यों सेम हुए, बिकॉज यहाँ पे RT कट हो गया, और RT कट क्यों हुआ, बिकॉज देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, और इन दोनों को ऐड करो, एक और एक भी कितने हो गए, 2, क्योंकि तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे Kp और Kc सेम हो। ये कंडीशन है, रिमेंबर ये कंडीशन है, बराबर कि नहीं, ये कंडीशन है। जिसके मान लो कि मेरा कोई इक्वेशन है, उसमें ऐसा है, देखो AA प्लस BB विल गिव अस CC प्लस DD, ऐसा है मान लो। तो यदि C प्लस डी, क्या यदि C प्लस डी सेम होगा किसके, तो इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन के लिए उसका जो Kp होगा वही क्या होगा उसका, याद रखना इसको आप, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे है देखो, ऐसा है देखो आप, इसका कोएफिशिएंट 2 है ना यहाँ पे, इसका कैसा है 1 और सेम है, तो कट हो जाएगा, मतलब कि Kp और Kc कैसा होगा यहाँ पे सेम होगा। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें वो सेम ना हो, और नहीं हो तो क्या लगा रहा है वो देखते हैं। चलो यू कैन सी द दूसरा एग्जाम्पल, यू कैन सी ये एग्जाम्पल देखो, यू कैन सी, देखो एक चीज आप समझो बात को, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, बट चैप्टर पूरा मैथमेटिक्स है, बराबर है, थोड़ा भयानक बड़ा चैप्टर भी है, बोरिंग भी है, क्या जो भी आप समझो वो है, ठीक है, थोड़ा सा बराबर ऐसे ही करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके बारे में, इसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर सकता भाई, बराबर ये तो ऐसा ही है, जो है वो ऐसा ही है, बराबर। चलो देखो अभी इसके लिए फाइन करेंगे हम, क्या फाइन करेंगे इसमें, Kp, क्या फाइन करेंगे Kp, बराबर। भैया तो ये देखो कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, कैसे पता चला होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में, सेम फेज है सारे के सारे गैस में, तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। और यदि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है और वो भी गैसियस फेज में है, तो आई कैन फाइंड होमो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट which equilibrium constant by taking the pressure, and that will be denoted by the Kp, what Kp, right, okay Kp। तो देखो इसमें Kp और Kc सेम होगा नहीं, समझना, देखो पहले 2 मिनट के लिए चलो मान लो कि Kc लिखना है, क्या लिखना है मुझे, 2 मिनट के लिए मान लो Kc लिखना है, तो Kc में तो कोई मगजमारी है ही नहीं, Kc कैसे लिखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी Na3 होल स्क्वायर। अभी मैं फिर लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जब भी मैं ऐसा ब्रैकेट करूँ ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी, और जब कॉन्सेंट्रेशन होगी मोलरिटी में, तो यहाँ पे मुझे लिखना क्या है, C, क्या रखना है, C इंडिकेट्स कॉन्सेंट्रेशन, ओके, नाउ हैव टू टेक कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी, डिवाइड बाय व्हाट, फटाफट बताओ, N2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू, बिकॉज यहाँ पे 3 है ना ये, एग्री। चलो ये हो गया केसी। अभी बात करते हैं यहाँ पे किसकी, केपी की। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रेशर लिखना पड़ेगा, किसका प्रेशर, क्योंकि ये मेरा क्या है प्रोडक्ट है, और ये दोनों मेरे क्या है रिएक्टेंट है, तो इसके जो प्रेशर है उसका, देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट देखो कैसा किया, ये सब थोड़ी थोड़ी फोकस रखो आप, ठीक है, डिवाइड बाय क्या, N2 का प्रेशर, दैट इज P N2, राइट, प्रेशर किसका N2 का, राइट, रेस टू 1 अगर 1 है, इनटू प्रेशर किसका रेस टू क्या 3, बोलो एग्री और नॉट। याद है कि देखो प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको याद करने को बताया था अभी, क्या था प्रेशर का फॉर्मूला, MRT, वेरी गुड, MRT याद करो, MRT बराबर, कैसे आया, तो भाई मैंने बताया आपको ऐसा आया, ठीक है, MRT रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द कॉन्सेंट्रेशन, राइट, ओके चलो समझता। तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा
बिकॉज मुझे तो वही प्रूव करना है कि केसी और केपी सेम है कि नहीं, जो कि नहीं है मुझे पता है, बट प्रूव करना है। देखो समझना, और क्यों सेम नहीं है, बिकॉज देखो यहाँ पे सिर्फ कितना है, और यहाँ पे ये 3 और 1 4 है ना, तो भाई कैसे सेम होगा। मैंने क्या बोला, सेम कब होगा, जब, है ना, आर यू गेटिंग और नॉट। कोएफिशिएंट से जो कोएफिशिएंट हो गए ना, किसके कोएफिशिएंट, जो भी प्रोडक्ट में कंपाउंड हो गए उसके कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी सेम। तो उसके लिए क्या होगा, केपी और कैसे कैसा होगा, सेम होगा, बराबर। बट यहाँ पे देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट प्रोडक्ट कितना है 2, और सम ऑफ द कोएफिशिएंट रिएक्टेंट कितना है 3 और 1 4, तो ये दोनों सेम जरा भी नहीं है। तो ऑफकोर्स जब सेम नहीं है तो यहाँ पे केपी और कैसे सेम होगा नहीं, और क्या डिफरेंस होगा वो देखते हैं। जो देखते हैं, देखो मैंने बताया आपको पी का फॉर्मूला क्या है, एम आर टी, क्या, तो कैन आई राइट हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इन मोलरिटी, ये हो गया एम, फिर R इंटू टी, और ये सबका कितनी पावर है 2, समझ में आया ये, डिवाइड बाय क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इन मोलरिटी, ओके एग्री ना, और इंटू क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा, सोचो एज पर फॉर्मूला, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन मोलरिटी, और यहाँ पे इंटू R टी, मतलब कि इस पूरे का क्या आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है ये। चलो अभी देखो, इतनी चीज पे फोकस करो, सिर्फ इतनी चीज पे, यहां से देखो ये दिख रहा है, ये चलो एक थोड़ा इसको ऑरेंज करते, देखो ये आरटी है, ये एक आरटी है, और एक का आरटी कट हो जाएगा, एक आरटी बचा, और यहाँ पे कितना आरटी है 3, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे एक है, तो ये कट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का, ये टी है, ये टी क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी का, बोलिए समझ में आया, पक्का, ओके पक्का ना, ओके। अभी जो बचा देखो, जो बचा वो देखो, उस पर फोकस करो, जो बचा उस पर फोकस करो, कितना बचा, इतना बचा, इतना बचा, ये तो यही है, देखो आप देखो, तो ये तो केसी हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, तो केपी इज इक्वल टू केसी डिवाइड बाय क्या, आर टी का होल स्क्वायर, आर टी का होल स्क्वायर, आर टी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें तो ऐसा लिख सकते हैं, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू -2, समझ में आया ये, ठीक है। इसके ऊपर से यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन लगाते हैं, ठीक है, मुझे हाँ केपी इज इक्वल टू केसी, ओके, तो यहाँ पे -2 आया, ठीक है, यहाँ पे -2 आया, ठीक है, तो ये -2 क्यों आया, बिकॉज देखो यहाँ पे आपने क्या किया, तो -2 आया, देखो ये दिख रहा है आपको 2 माइनस ब्रैकेट में क्या करो 3 और एक कितना करो 4, तो कितना आया 2 में से 4 जाए, तो समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि ये जो -2 है आप कैसे डिफाइन करोगे जनरली, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है ना, तो हाउ विल यू डिफाइन दिस, यहाँ पे मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, जनरल के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू डेल्टा एन, तो डेल्टा एन कैसे डिफाइन करोगे आप कोई भी इक्वेशन के लिए, जैसे कि मैं देखो मान लो कि इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, मान लो कि ऐसा है ए प्लस बी विल गिव अस सी प्लस डी, और मैं यहाँ पे इसके लिए कोई भी जनरल फॉर्मूला ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा केपी इज इक्वल टू क्या होगा केसी आर टी रेस टू डेल्टा एन, तो ये डेल्टा एन कैसे डिफाइन करोगे आप इसके लिए बताओ, तो क्या करोगे इसके कोएफिशिएंट को ऐड करोगे, इसका मतलब कि प्रोडक्ट के, देखो तो सी प्लस डी करोगे, उसमें से क्या करोगे माइनस करोगे क्या, समझ में आया, और जो आएगा वो आपका क्या होगा डेल्टा एन, बोलो क्लियर है कि नहीं, ऐसा करना। अभी ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ऐसे ही करनी पड़ेगी, पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें क्या कर रहा हूँ, कुछ है नहीं, कोई खास चीज नहीं है, ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स ही है, बराबर कि नहीं, आई होप समझ में आई है, अपलोड कर दूंगा वीडियो में, समझ में ना आए तो देख लेना वापस से, बराबर। चलो क्लियर है ना, इसको याद रखो, आप भूलना मत, इसको याद रखो इस चीज को, ठीक है, अपलोड कर दूंगा वीडियोस में, देखना देख लेना, बस समझ में आ जाए, ऐसा है कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, ठीक है, चलो ओके। अभी इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर 3 क्वेश्चन करने हैं और हमको, बराबर, विच इज अबाउट केसी एंड केपी, किसी को फिलाई, क्या, व्हाट इज दिस केसी एंड केपी, कुछ नहीं आई ना, फिल अभी भी नहीं आई ना, देखो, और इन लोगों ने भी हमको लास्ट में बताया, देखो बता रहा हूँ मैं आपको, क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉस्ट लिखा है यहाँ पे 7.6, कौन सा है, बराबर, और वो लास्ट में ही होनी चाहिए, और फिर लास्ट से वापस हम पहले पाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या, तो आपको फिल आ जाएगी बहुत ही जल्दी, डोंट वरी अबाउट द फिल, कि व्हाट इज दिस केसी, किसी का मतलब क्या होता है सर, बराबर, ओके,
क्योंकि मेरा पर्टिकुलरली मानना ये है कि मुझे तो जब तक पर्टिकुलरली मैं जब स्टूडेंट था और अभी भी जब तक कोई भी चीज की फील ना है ना कि भाई ये क्यों कर रहे हैं हम, मजा नहीं आता उसका, और मजा आना भी नहीं चाहिए। तो वो जो फील है वो आएगी आपको, बराबर। बट उससे पहले मैं जो आपको याद करा रहा हूँ ये जो चीज वो आप याद करोगे, बराबर। आज अभी आपको भूलना नहीं है, क्या भूलना नहीं है कि भाई केपी इज इक्वल टू क्या, के सी इन द ब्रैकेट आर टी रेस टू डेल्टा एन, जहां पे डेल्टा एन क्या होगा, तो आपको वैसे दिमाग में है ही भाई सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, है ना दिमाग में। तो थोड़ा बोलना हो तो क्या, when the chemical equation is balanced, मतलब in the chemical balanced chemical equation, the difference between the sum of the coefficient of the product and the sum of the coefficient of reactor is known as delta n, ऐसा आर रिगार्डिंग कर रहा हूँ। बट वही बोलने में थोड़ा दिक्कत आता है, आपका दिमाग में होना चाहिए बट डेल्टा एन ऐसे सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ऐसा तो होना ही चाहिए डेल्टा एन का मतलब, ठीक है ना, वो तो होना ही चाहिए। ठीक है चलो देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है इसलिए, बराबर। चलो ओके एज नहीं यार, पप्पा नाम से तो मैंने यार भयानक होगा आज। ओके देखो समझना भाई, the value of the kp, the value of the kp for the reaction CO2 plus C will give us 2CO is 3 at 1000 Kelvin, बराबर। तो kp की वैल्यू दी है, कितनी दी है आपको kp की वैल्यू, देखो तो 3.0 मतलब कि 3 राइट। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ kp की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 3। ओके और एक चीज बता दूं आपको, देखो ये जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है। वो यदि टेम्परेचर बदलेगा ना तो वो क्या होगा, कांस्टेंट भी बदल जाएगा उसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए, बराबर। ये स्टेटमेंट को आप याद रखो, इसकी बात हम करते बाद में, ठीक है। यदि टेम्परेचर बदल जाएगा तो क्या होगा, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। कोई भी हो, के पी हो या के सी हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी क्या दिया है, 1000 केल्विन पे दिया है ना, तो 1000 केल्विन टेम्परेचर पे ये पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, ये पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए केपी की वैल्यू कितनी है 3, कितनी है 3। ओके ओके अभी देखो मुझे क्या पूछा है समझना, इनिशियली इतना है, ये इतना है, एंड प्योर ग्रेफाइट इतना है, कैलकुलेट द पार्शियल इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, एक मिनट, calculate the equilibrium partial pressure of CO and CO2। देखो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ, चलो तो अरे यार ये 7.6 आ गया, बीच में क्वेश्चन रहेगा ना अपने 7.3 वगैरह रहेगा ना। यस हाँ 2 मिनट ये वाले क्वेश्चन रहेगा ना।
एक्चुअली मैं यहाँ पे कहाँ तक पहुंच गया, ये तो हेड्रोजीनियस था ना। हाँ वही तो मैं वही सोच, मैं बहुत आगे चला गया मैं। चलो 2 मिनट, ये क्वेश्चन नहीं करना है अभी, देखो ये करेंगे पहले क्वेश्चन 7.3 कौन सा 3 बराबर। You can see this question. लिखा देखो, PCl5, PCl3, Cl2 are at equilibrium at this much Kelvin, having the concentration this much, this much, this much. Calculate the Kc for the reaction. देखो रिएक्शन आपका ये है, क्या हो रहा है यहाँ पे, PCl5 जो है उसमें से बन रहा है PCl3 एंड Cl2 बन रहा है। यू कैन सी ये जो PCl5 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे दी गई है, मतलब कि आई कैन से concentration of PCl5 and when I do curly bracket, that square bracket मतलब it is in the molarity, कितनी है वो concentration 1.59। फिर concentration of PCl3 in molarity is given as 1.59 molar and concentration of sorry गलत है ना ये तो, concentration of PCl3 PCl पहले है PCl3 की दी है पहले बराबर, ये गजब है भाई, आड़ा उड़ा के दे रहा एकदम। ठीक है देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 कितनी है 1.59, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 बराबर, PCl5 की कितनी है 1.41 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 कितनी है 1.59 मोलर है। मुझे क्या फाइंड करना है, Kc फाइंड करना है। देखो Kc है ना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं Kc। Kc का मतलब क्या होता है, क्या इक्वेशन बैलेंस है, हाँ है देखो, फॉस्फोरस 1 फॉस्फोरस 1, क्लोरीन इस तरफ 5, इस तरफ भी क्लोरीन 3 और 2 5, तो यहाँ पे इसके आगे 1, इसके आगे 1, इसके आगे भी 1, तो क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इन मोलरिटी रेज़ टू 1, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी रेज़ टू 1 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन PCl5 इन मोलरिटी रेज़ टू 1, बस इसमें सारी वैल्यू रख दो, करो फटाफट से। देखो PCl3 की कितनी है 1.59, Cl2 कितना है 1.59 डिवाइड बाय ये कितना है 1.4 सॉरी 1 मिनट PCl3 कितना है 1.59, फिर Cl2 कितना है 1 पॉइंट, वो भी 1.59 ही है, और PCl5 कितना है 1.41, तो 1.59 इंटू 1.59 डिवाइड बाय 1 पॉइंट कितना आ गया 1.79, तो 1.79 इज व्हाट योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर। चलो बराबर ओके, अभी बात करेंगे 7.4, किसकी बात करेंगे 7.4 की, राइट। चलो 7.4 में क्या होगा वो देखते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो द वैल्यू ऑफ Kc इज दिस मच, और मैंने जैसे बताया आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होगी ये वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी Kc की बदल जाएगी। ऐसा क्यों होगा हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी बराबर, ये बस आप ये सेंटेंस को याद रखना ही, फिर उस टाइम ऐसा ना हो कि जब मैं आपको पूछूं कल या परसों ही कि मैंने बताया था कि भाई जब टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी तो एक उसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू या Kb की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आपको पता ही ना हो कि सर ऐसा कब बताया था, ऐसा मत दिखना, मेहरबानी करना इतनी, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है ओके। तो Kc 4.24 है कब, जब टेम्परेचर कितना है 800 केल्विन, ये आपका केमिकल रिएक्शन है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द CO2 इसका एट 800 केल्विन इफ only CO and H2 are present initially at concentration of the this much molar, okay। अभी ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको हल्की सी फील देगा किसके बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मतलब के बारे में। देखो समझना, मैंने आपको, चलो इसमें थोड़ा समझते हैं, मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल दूसरे इरिवर्सिबल। मैंने आपको इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जिसमें कि इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, उसके मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, याद है किसी को, कौन सा था वो एग्जांपल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या याद करो,
जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब एसिड और बेस क्या ओके जैसे कि मान लो कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं NaCl और यहाँ लिख रहा हूँ मैं सॉरी यहाँ लिख रहा हूँ मैं NaOH मतलब कि चलो पहले एसिड HCl प्लस ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे ठीक है और यहाँ पे मुझे क्या दे देंगे NaCl और बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया पहले सॉरी 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 ठीक है तो बराबर ये क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन कौन सा है ये इरिवर्सिबल है बराबर ओके अभी देखो समझना जब समय जीरो होगा क्या समय जब जीरो होगा तो मान लो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में एक्स नॉट है कितनी है एक्स नॉट है इसकी मान लो कि शुरुआत में इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि एक्स नॉट है शुरुआत में इसकी सब कितनी होगी जीरो होगी इसकी कितनी होगी जीरो होगी एंड जब पूरा समय खत्म हो जाएगा पूरा समय खत्म हो जाएगा जब तो इसकी कितनी हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगी ओके बिकॉज सारा का सारा काउंट इसमें हो जाएगा और उसकी हो जाएगी जो भी मैक्सिमम होगी वो हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन सारी की सारी मतलब ये हो जाएगा जैसे वाई नॉट हो जाएगा मान लो पूरी कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं ठीक है तो जब मैं 10-15 मिनट के बाद देख रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं तो उस समय यदि मुझे इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए मान लो केसी फाइंड करना हो क्या फाइंड करना हो केसी जो कि फाइंड नहीं कर सकता वैसे तो बट जस्ट आपको आइडिया है उसलिए क्योंकि केसी इज ऑलवेज ओनली फॉर द इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन बट ये कौन सा है सॉरी केसी इज ओनली फॉर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन बट ये कौन सा है इरिवर्सिबल है बट फिर भी मान लो फाइंड करो तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका इनटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 बनाएगा क्योंकि बैलेंस ही है ये और यहाँ पे HCl और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया याद करो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है क्योंकि सारा का सारा यूज हो गया इसमें कन्वर्ट हो गया होगा और इसके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ फर्क पड़ता समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट समझ में आया मतलब व्हाट इज कंक्लूजन जितनी केसी की वैल्यू ज्यादा होगी जितनी केसी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट ज्यादा बन गया होगा समझ में आया कि नहीं आया यदि मैं बोलूं कि कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो कि 1 है कितना है तो 1 एक छोटा नंबर है क्या है 1 एक छोटा नंबर है समझ में आया छोटा नंबर है मतलब क्या जब इक्विलिब्रियम हो गया ना तो उस समय क्या था ये जो है ना ये बहुत ज्यादा इसमें कन्वर्ट हुए ही नहीं बट फिर भी क्या हो गया इक्विलिब्रियम हो गया यदि मैं आपको और डीप में समझाऊं देखो अभी इसमें परफेक्टली समझ में आ जाएगा आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा यहाँ पे ठीक है अभी मैं जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ उसमें परफेक्टली समझ में आ जाएगा आपको व्हाट आई वांट टू से देखो समझना और फिर भी समझ में नहीं आते तो फिर मौज कर दे बराबर देखो आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ये किसका ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा कॉन्सेंट्रेशन और ये C वर्सेस T मान लो कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो है ना उसकी वैल्यू कैसे बहुत ही कम है बहुत ही कम मतलब से कम है किससे कम है 100 से कम है कैसे ये 100 से कम मतलब जितनी वैल्यू कम होगी जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही क्या होगा हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम में होगा ना तो क्या होगा इस तरफ कुछ ज्यादा चीज बनी होगी नहीं सोचो आप इस जगह ज्यादा चीज नहीं बनी होगी मतलब कि ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिली नहीं है मतलब कि आपको पता है प्रोडक्ट का ग्राफ यहाँ से ऐसा स्टार्ट होता है याद करो देखो ऐसा और ज्यादा रिएक्टेंट जो था ना वो ज्यादा कम हुआ नहीं है देखो समझ में आया कि नहीं आया फिर भी क्या हुआ यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया इक्विलिब्रियम यहाँ से स्टार्ट हो गया समझ में आया कि नहीं आया देखो अभी जस्ट इतनी सी प्रोडक्ट बनी है बस और ज्यादा बनेगी भी नहीं ज्यादा बनेगी भी नहीं क्योंकि जब ज्यादा बनेगी तो वापस वही प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो जाएगी तुरंत रिएक्टेंट पे वही तो होता है ना मतलब इक्विलिब्रियम का याद करो आर यू गेटिंग अभी समझ में आ रहा है ओके मान लो कि जो केसी है उसकी वैल्यू 100 से तो ज्यादा है बट लेट अस से मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख के आसपास है मान लो लेट अस से 1 लाख के आसपास है तो उस समय क्या होगा ऑलमोस्ट बीच वाली सिचुएशन होगी क्या होगी ऑलमोस्ट ऐसी कुछ सिचुएशन होगी उस समय जैसे कि यहाँ से मान लो कि क्योंकि इस ये वैल्यू ज्यादा हुई ना तो ज्यादा वैल्यू जितनी होगी उतना ही मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा है इक्विलिब्रियम जब हुआ तब बराबर प्रोडक्ट अच्छा खासा है मतलब कि ये ग्राफ ऐसे ऊपर गया होगा और यहाँ से रिएक्टेंट भी यहाँ से होगा तो अच्छा खासा ऐसे उसको कम होना पड़ेगा सोचो आप समझ में आया और यदि केक की केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है मान लो तो क्या होगा ऑलमोस्ट क्या हुआ होगा ऑलमोस्ट सारे के सारे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और ऑलमोस्ट मतलब प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा होगी और रिएक्टेंट जो है सारे के सारे क्या हो गया ऑलमोस्ट ऐसे कन्वर्ट
हो गए बोलो, आ रहा है समझ में? देखो क्लियर है ये कि नहीं है? तो ये होता है एक मीनिंग केसी का, समझ में आया ये? थोड़ी थोड़ी फिलाई केसी का मतलब क्या होता है? तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप केसी को देखो, किसको देखो, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यदि केसी कम है, केसी कम है मतलब क्या, ये जब केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो जब इतनी जल्दी इक्विलिब्रियम हो गया कि बेचारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का ज्यादा टाइम ही नहीं मिला। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मेरे पास 90% रिएक्टेंट ऐसे कैसे ही है, और 10% ही प्रोडक्ट बनी है, और उसमें तुरंत इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया। और एक बार इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया, उसके बाद नई प्रोडक्ट बढ़ेगी नहीं। सोचो आप, जो एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट होगी वो रिएक्टेंट में हो जाएगी, और जो एक्सिस्टिंग रिएक्टेंट है उसमें से प्रोडक्ट बनता रहेगा, बट कोई नया पैदा नहीं होगा प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग? समझ में आया? तो देखा जाए तो केसी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज्यादा की कम? ज्यादा होनी चाहिए। आप दिमाग लगाओ, क्योंकि हमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चाहिए ना, हम प्रोडक्ट निकालेंगे ना, ज्यादा कैसे होनी चाहिए? तो केसी की वैल्यू ज्यादा हो तो हमारे लिए देखा जाए तो अच्छा है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अच्छा है। थोड़ी थोड़ी फिलाई, केसी का मतलब समझ में आया क्या है? ये होता है, मतलब आई होप समझ में आया होगा। नहीं और ये पता होना चाहिए, अभी भी उसमें बहुत से पॉइंट है केसी में, इतना नहीं है। और ये अभी तक कब समझ में आया, जब आपने इतने न्यूमेरिकल्स लिखे तो, स्टार्टिंग में कराया होता तो लिटरली आप बोर हो जाते। और चलो अभी समझ में आया, पक्का समझ में आया? तो इसी कॉन्सेप्ट का हमको इस क्वेश्चन में यूज करना है, बराबर? चलो देखते हैं कैसे कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो आप। देखो समझना, तो यहाँ पे केसी की वैल्यू कितनी है? इज इज गुड वैल्यू 4.24, अच्छी नहीं है ना? देखो ये, चलो आपको एक और स्टेटमेंट दिखा देता हूं मैं, 2 मिनट। देखो कहाँ गया, ये दो स्टेटमेंट देखो, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, देखो कितने 1000 से ज्यादा है, तो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है ना, प्रोडक्ट कैसी होगी, तो ज्यादा होगी, बराबर कि नहीं? ओके, यदि केसी की वैल्यू कितने कम, ये 1000 हुआ, इसको 1000 बोलोगे आप, 10⁻³ नहीं, इसका मतलब ये हुआ 0.00001, समझ में? उससे भी कम है, तो मतलब कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं रही है। देखो रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट, क्योंकि प्रोडक्ट बन ही नहीं रही है। समझ में आया ये? तो अभी वैल्यू कितनी है, 4.24 है ना, तो ये भी कोई खास तो अच्छी बात नहीं है, इसमें कोई वैसे तारीफ करने की योग्य बात नहीं है। समझ में क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? तो इसमें भी किसका प्रीडोमिनेंट होगा, इतना तो फिलहाल आपको बस वही समझ में आया, ये किसका प्रीडोमिनेंट होगा, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा हो गया सब। ओके चलो अभी इतनी बात की तो और एक बात कर लेते हैं, ठीक है? आपने इन दोनों को जब इकट्ठा किया, किसको, एक मिनट, आपने जब एक क्वेश्चन के हिसाब से जब हमने इन दोनों को इकट्ठा किया, हम यही क्वेश्चन देख रहे हैं ना अभी, 7.4 देख रहे हैं ना, जब आपने इन दोनों को इकट्ठा किया, किसको, तो आपका टारगेट क्या होगा, आपको आपने ये और ये आपको चाहिए, तब इसके लिए तो आपने ये सब मेहनत की होगी ना, बट साला आपको मिल नहीं रहा है ज्यादा, बिकॉज उस पर्टिकुलर जगह पे आपको जो केसी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, बट आपको तो फिर भी ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, बराबर? तो व्हाट यू विल डू, क्या कर सकते हो आप बताओ, सोचो। आर यू गेटिंग? आप मार्केट से क्या ले आए, पानी तो घर पे होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ले आए मान लो, किस लिए लाए, बिकॉज आपको पैदा करना था क्या, समझ में आया कि नहीं आया? और आपने सब कुछ सेटअप किया, और फिर सेटअप करने के बाद साला तुरंत क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, क्या आ गया उसमें, इक्विलिब्रियम आ गया, मुझे इक्विलिब्रियम। अभी क्या होगा, इसमें से ये बनेंगे तो सही, बट वापस ये दोनों में से वापस कौन कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब ये कोई नई कॉन्सेंट्रेशन इसकी आएगी नहीं। तो ये तो देखा जाए तो पूरी बात है ना, मुझे तो अच्छी खासी इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थी, तो क्या कर सकते हैं बताओ, आपके पास है आंसर, क्या कर सकते हैं? एक्सीलेंट, मैंने बोला ना, बस ये होती है पूरी फील्ड। टेम्परेचर बढ़ाएगा, क्या करेंगे, एग्जैक्टली, समझ में आया? यदि टेम्परेचर बढ़ाएगा ना, अभी समझ में आया, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या होगा, ये दोनों ज्यादा रिएक्ट करेंगे आपस में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ज्यादा एक दूसरे के अंदर घुसेंगे, ज्यादा घुसेंगे तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनाएंगे, और प्रोडक्ट जब ज्यादा होगी तो अपने आप केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? बस ये होती है परफेक्ट फिल, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से केसी की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। देखो
दे रहा हूँ अंदर से आंसर आप समझ में आ रहा है, ये सोचना है, ठीक है। ये आएगा तभी मजा आएगा पढ़ने का, नहीं तो बोरी लगेगा सब, क्योंकि वो फिर आप डिसाइड कर सकते हो अच्छा केसी की वैल्यू इतनी है ना, इतनी ज्यादा है वैल्यू, अरे वाह अच्छी खासी प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो केसी की वैल्यू कम है तो आप क्या करोगे इंडस्ट्री में, टेम्परेचर बढ़ाओ। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा। तो ये थी फील जो कि आपको लानी थी, समझ में आया, थोड़ी थोड़ी फील आ गई होगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केसी और क्या कर रहे हैं हम एग्जैक्टली, राइट। चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, समझना, बराबर। ओके ओके, अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो समझना क्या होगा। बका आयुष्य ना चाले हुआ सीरियसली कहूँ तने, बराबर। बका बोरिंग लागे जो શું કહું તમને, હું છોડો યાર, કશું નહીં, મારે કઈ કેવું જ નથી હવે. ઘણી વખત છે ને આઈ મે બી યુઝિંગ ધ હાર્ડ વર્ડ્સ એન્ડ ધેન યુ, મતલબ તમને કદાચ ખોટું લાગે પણ એટલા માટે, બરાબર. પણ તો પણ હું કહીશ, બરાબર. ઓકે, સી ઇફ યુ ડ્રીમ બિગ રાઈટ, યુ વિલ હેવ ટુ વર્ક અકોર્ડિંગલી, દેટ ઇઝ ફોર શ્યોર, બરાબર. તમે જો ડોક્ટરનું ડ્રીમ જોતા હોય, બરાબર છે, તો યાર આંખો ફાડી પડે, લિટરલી તને કહું, સાચું કહું તને, તો આવું તો કઈથી ચાલશે યાર, બરાબર. પછી તમે એક જસ્ટ ખાલી કહું છું આ તો, એટલે મને કહીશ જ ડેફિનેટલી, બરાબર કે નહીં. તો પછી તો ઇફ યોર ડ્રીમ ઇઝ બિગ, તો પછી મહેનત તો કરવી જ પડશે ને. કેટલા લોકો દિવસ રાત જોયા વગર તમને ખબર મંડિયા પડ્યા છે. અને આને પૂછી લે કેટલા હતા પેલા એના નીટમાં 420, તારા કોઈ સ્ટડી મારે છે કેટલા હતા? 420 ઇઝ વેરી ગુડ સ્કોર. હે, એક વર્ષ ડ્રોપ લીધા પછી આયા 420, અને 420 આયા પછી કેટલા રૂપિયા? 4 કરોડ રૂપીસ પે કરશે, ધેન હી વિલ બી ધ ડોક્ટર. એમબીબીએસ ખાલી, એ પણ એમબીબીએસ, 4 કરોડ એગ, અને પાછું એમડી તો હજુ અલગ. અને એમબીબીએસ તમને ખબર જ છે, આમ જો બોલા તો ગલે ગલે પડ્યા છે, એવું કહી શકાય આમ, બરાબર. તો તમે વિચારો યાર, તમે વિચારો, બરાબર છે. એટલે બકા અઘરું તો છે જ ને, અઘરું તો છે જ, અઘરું તો, અને એટલે તો છે, બરાબર છે કે નહીં. લોકો એમણે આખું એક એક કેટલું બધું એ કરીને વાંચે છે. અને યુ નો દેટ રાઈટ, નીટ ઓર જેડબલ ની એક્ઝામ તમારી જે હોય છે ને, યુપીએસસી લેવલની એક્ઝામ હોય છે, તમને ખબર હશે, મારે ટોપ 10 સૌથી ટફ એક્ઝામ આવે છે, બરાબર કે નહીં. ટોપ એટલે હવે ટોપ 5 માં આવે છે, રાઈટ. તો કઈ જેવી તેવી એક્ઝામ નથી, બરાબર છે. કંઈક કંઈક તો સેક્રિફાઈસ. યુપીએસસી તમને આઈડિયા છે યુપીએસસી કરવું હોય તો કેવું ખતરનાક કરવું પડે યુપીએસસી એટલે, બરાબર. એટલે બકા છે અઘરું, અઘરું છે, કષ્ટ પડશે, મહેનત પડશે, મને પડે છે, બરાબર છે. મને પણ એનો મતલબ કે એવો તો નથી ને કે આપણે વાંચવાનું એ કરે, વાંચવું તો પડશે, કોઈ ઓપ્શન ત્યાં નથી, બરાબર. તો પછી એટલે મોટિવેટ તો રાખવું જ પડશે પોતાને, ગમે તે રીતે મોટિવેટ તો રાખવું જ પડશે. અને એકચ્યુઅલી આ તો તમારી એ જ છે કે પોતાને પેલું આમ હોય ને, પોતાની અલગ આઈડેન્ટિટી ક્રિએટ કરવાની, આમ કે ના ભાઈ મારે કંઈક કરવું છે લાઈફમાં. તમે તમારી એક અમુક એજ પાસ હશે ને ભાઈ, તમે ગમે તેટલું કરશો પછી કશું નહીં થાય. હું તમને ચોખ્ખી વસ્તુ કહું છું, જે કરવાનું છે અત્યારે કરવાનું છે, because now you are the least responsible, you have the least responsibility on your head, બરાબર. તો જે કરવાનું છે અત્યારે જ કરવાનું છે, અત્યારે જ મોટિવેશન રાખવાનું છે, સમજો વાતને વસ્તુ. અને મોટિવેશન એટલે આ જ બધી વસ્તુ, જે નથી ગમતું એ જ તો કરવાનું છે, જે ગમે છે તો બધા કરી નાખશે, જે નથી ગમતું એ જ તો કરવાનું છે, એમાં તો માર્ક્સ લાવવાના છે, રાઈટ. એ થોડું ફોકસ રાખો, બાકી તો આ છે ને બહુ ખતરનાક વસ્તુ બધી. અને તમે જાણકારી કહી દો, તમને લાગે એટલું હાર્ડ પણ નથી, તમને એટલું લાગે છે ને એટલું હાર્ડ પણ નથી, બરાબર. આ તમે સમજ્યા ને અત્યારે કેસી નો મતલબ શું છે, આ બધું સમજ્યા ને, આ તમે સમજો એટલે પછી એટલું બધું કઈ તમને લાગે એટલું હાર્ડ પણ નથી, જેને જેટલું બનાવી દીધું એટલું હાર્ડ પણ નથી, બરાબર. કારણ કે લાસ્ટ યર જે સ્ટુડન્ટ હતા, બરાબર, 12th ના, માધવી, ખુશી અને પૂજા તો ઠીક થોડું કામ એવરેજ હતી, પણ પેલા 2 જણા, એ લોકોના પણ બહુ સારા માર્ક્સ હતા ગુજકેટમાં, એ લોકોએ કોઈ એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ નથી કરી, પડી ગયા કે ના પડી, જે આગળ મારા ભણ્યા હતા એ જ વસ્તુ, બરાબર. કશું જ એક્સ્ટ્રા કર્યું નતું આમ, બસ બહુ. અને છેલ્લે ખાલી 10-15 દિવસ મેં કરાયા હતા એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન થોડા, એ લોકો કર્યા હતા બસ, ખાલી કશું નથી. તો પણ આમ સારા એટલે કે 120 માંથી કંઈક 67 કે 69 કે આગળ માર્ક્સ હતા, વિચ ઇઝ ગુડ. એવું નથી કે મતલબ એટલા પણ સારા નથી, પણ ઇટ ઇઝ કમ્પેરેટિવલી ગુડ, પડી ખબર. તો આ વસ્તુ છે, કોન્સેપ્ટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ, રિમેમ્બર ઇટ. અને કોન્સેપ્ટ એટલે અત્યારે તમે કરો છો ને એ જ મહેનત, પછી 2 મહિના પછી તમારી જો આંખ ખુલી ને કે સર હવે આમ તકલીફ પડે સર, શું કરીશું, તો યાર કોઈ નહીં બચાવી શકે, ખરેખર કોઈ તમને કહું છું, પ્લીઝ ફોકસ રાખજો આ વસ્તુમાં. નહીં તો પછી બીજો ઓપ્શન કહું તમને શું છે, બહુ મોટા એમ નહીં જોવાના, બહુ મોટા ગોલ નહીં રાખવાના, ફેક્ટ કહું છું, બરાબર.
જો ગોલ મોટા હશે, જેટલા ગોલ મોટા હશે તકલીફ એટલી વધારે હશે. એ તો ફેક્ટ છે, બરાબર? એ તો ફેક્ટ છે. ચાલો, એ તમારી વાત હોય કે મારી વાત હોય, એ કોઈ બધામાં એપ્લાય થાય છે વસ્તુ, બરાબર? ચાલો સમજો આન્સર. હવે જો કેસી કેટલું છે? 4.24. ઓકે, હવે શું કરીએ છીએ આપણે? સમજો કેલ્ક્યુલેટ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સન્ટ્રેશન, મતલબ કે ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? થઈ ગયું, બરાબર? ઓકે, ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ ગયું એટલે જો આ CO છે અને આ H2O છે. આ બંને ભેગા થઈને શું બની ગયું? CO2 બની ગયું, H2 બની ગયું. આ ગેસ ફોર્મમાં છે, આ પણ ગેસ ફોર્મમાં છે, આ પણ ગેસ ફોર્મમાં છે અને આ પણ ગેસ ફોર્મમાં છે. ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ ગયું, બરાબર છે? ઓકે, અને આપણો ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ ઇન્ફાઇનાઇટ નથી. ઇન્ફાઇનાઇટ તો એનો મતલબ એ થાય કે આગળ 100% પ્રોડક્ટ બની ગઈ અને રિએક્ટન્ટ કશા છે નહીં. ઓકે, હવે સમજો જ્યારે સમય 0 હશે, શું સર? સમય 0 લઈ લો અને એક પર્ટિક્યુલર સમય લઈ લો t, બે સમય લઈ લો. જ્યારે સમય 0 હશે ત્યારે આ બન્યું હશે જરા પણ કશું? ઓફકોર્સ આ કશું બન્યું જ નહીં હોય, એટલે આની કોન્સ્ટન્ટ કેટલી હશે? 0 મોલાર. ચલો, પણ આ કેટલું હશે? ઇનિશિયલી જેટલું હશે x0, કે આગળ કેટલું આપણે આગળ જે અંદર લખ્યું છે એ લખી દઉં, બરાબર? એ લોકો કેટલું લીધું છે? અચ્છા, શરૂઆતની આપણને આપી છે કોન્સન્ટ્રેશન? હા, આપી છે. હા, ઇનિશિયલ આપી જો. ઇનિશિયલી બંનેની કેટલી છે? 0.10 મોલર આપી છે, જો તમે, હે ને? તો ઇનિશિયલી કેટલી છે આની કોન્સન્ટ્રેશન? 0.10 મોલર અને આની પણ કેટલી છે? 0.10 મોલર. એક મિનિટ બોલો. કારનું આ બંધ હતું? આ બધું ચાલુ છે કે બંધ છે? ઓકે, ચાલુ. ચાલો સમજો, બરાબર? તો આ બધી ખબર તો કહું છે બંનેની કોન્સ્ટન્ટ કેટલી હતી શરૂઆતની અંદર? આટલી જ. અને મતલબ આ બે અને આ વખતે કશું આ બન્યું નહીં હોય શરૂઆતમાં, તો ના બન્યું હોય ને, બરાબર? તમે નાખ્યું છે તો કન્ટેનરમાં નાખ્યું ખાલી, બરાબર? પણ અમુક સમય પછી શું થયું? આની કોન્સ્ટન્ટ થોડી ઘટી. હવે તમે વિચારો, હું કહું છું કે માન લો કે જો આગળ બધાની આગળ શું છે? 1 1 1 જ છે. સૌથી ઈઝી વસ્તુ આ છે. આ ક્વેશ્ચન માંથી હાર્ડ ક્વેશ્ચન પણ આવશે, બરાબર? માન લો કે આગળ હું કહું છું કે તમારું આ છે ને, માન લો કે આની કોન્સન્ટ્રેશન આટલી થઈ ગઈ x0, x શું લખ્યું છે? x, આપણે પણ x લખીશું. માન લો કે આની x મોલર થઈ ગઈ, આની પણ x મોલર થઈ ગઈ. મતલબ શું હશે? આની ઇનિશિયલ જે હતી ને 0.10 મોલર, એમાંથી x આની શું થઈ જશે? વિચારો, પાક્કું ખબર પડી આ વસ્તુ? ના પડી? પાક્કું? જે આ વપરાયું હશે એટલું તો આ બન્યું હશે ને, અને એ રીતે આની પણ કેટલી થઈ ગઈ હશે? 0.10 માંથી પડી ખબર ના પડી? અને હજુ કહું છું આગળ x આ વસ્તુ તમને આપણે જ્યારે ક્વેશ્ચન આવશે ને ત્યારે તમને ફીલ આપીશ આની. અત્યારે કેમ ઈઝી થઈ ખબર? આટલું ઈઝી, કારણ કે આગળ દરેકની આગળ શું છે? પછી આગળ 2 આવવા દો એકમાં, એટલે પછી આગળ વિચારવું પડશે આખું. પડી ખબર કે ના પડી? પછી આખું પેલું આમ રેશિયો કરીને બધું કરવું પડશે. એવું આવું તમને છે ને આખું એક એક્ઝામ્પલ આપીશ ગ્રામનું. આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈશું ગ્રામમાં અને સમજીશું, બરાબર છે? ઓકે, અને તમારી જાણકારી માટે ચલો એક બીજું એક મોટિવેશન આપું તમને. આ તો કરીએ છીએ કન્ટિન્યુ. દેખાય છે આ વસ્તુ? દેખાય છે તમને લોકોને આવું કઈ સ્ક્રીન પર? ઓકે, હવે જોજો, ખાલી એક સેકન્ડ ઉભા રહેજો. આ શું ઓપન કરું જોજો. 12th, બરાબર? ઇંગ્લિશ મીડિયમ, કેમેસ્ટ્રી, બરાબર? એમાં ચેપ્ટર નંબર 4, બરાબર? શું લખ્યું છે આગળ ચેપ્ટર નંબર 4 માં? કેમિકલ કાઇનેમેટિક્સ લખ્યું છે આવું કંઈક? ઓકે, બરાબર? કેમેસ્ટ્રી જ છે, બરાબર? આવું છે જો રેટ ઓફ, અહીં લખ્યું હશે રેટ ઓફ રિએક્શન, લખ્યું રેટ ઓફ, મતલબ આ જ બધું જે આપણે કહીએ છીએ ને આપણે એવું બધું આવે છે અત્યારે. આ જો કોન્સન્ટ્રેશન, પેલો કયો બ્રેકેટ છે? સ્ક્વેર. સેમ વસ્તુ જો 12th ની અંદર આ બધું જ છે જો. કોન્સન્ટ્રેશન આ રીતે ઘટે ને આ રીતે વધે, જો દેખાયું? બરાબર? આ બધા ન્યુમેરિકલ્સ પણ જો તમે આવા જ છે બધા, બરાબર? આટલા પર્ટિક્યુલર સમય પર ઇનિશિયલ આટલું છે અને ફાઇનલ આટલું છે, જો, બરાબર? એટલે આખું લિંકઅપ ચેપ્ટર છે આના જોડે, બરાબર? એટલે પછી આમાં ખબર નહીં પડે. આ જો આ બધું આ જ છે, મતલબ કોન્સન્ટ્રેશન આની નાની રેટ ને આ જો રેટ બધું, બરાબર? એટલે એ વખતે તમારે વધારે આમ ફીલ કર્યું હોય ને તો પછી આ ચેપ્ટર તમને આવડવું જોઈએ, બરાબર? બાકી ચેપ્ટર નંબર 4 ની ફીલ નહીં આવે. એની ચેપ્ટર 6 માર્ક્સનું છે. કેટલા માર્ક? 6 માર્ક્સનું છે. એટલે વિચારો, બરાબર? ઓકે, આ એક બીજું એક મોટિવેશન. ચાલો હવે શું કરીશું બોલો? તમને ખબર છે કે અત્યારે એક પર્ટિક્યુલર સમય પર આટલી કોન્સન્ટ્રેશન છે અને હવે આટલી જ રહેવાની છે, આ બદલાવાની, કારણ કે શું થઈ ગયું હવે? વેરી ગુડ, ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ ગયું. અને તમને ખબર છે એક વસ્તુ કે ઇક્વિલિબ્રિયમ થાય ત્યારે ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ આટલો તમને આપ્યો જો, બરાબર? તો આઈ કેન રાઇટ વોટ આઈ કેન રાઇટ, અહીં લખી શકું છું. હવે આરો પેજ આખો થઈ જશે બધું. વોટ આઈ કેન રાઇટ? કેસી ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, યાદ કરો કોન્સન્ટ્રેશન કોની લખવી પડશે મારે? CO2 અને H2 ની. પડી ખબર? તો કહું છું ડાયરેક્ટ લખી દો. કેટલી હતી? x અને x છે ને, ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું અત્યારે. જો તો આવશે x, લખો ફટાફટ, ખતમ કરો યાર, બરાબર? હે ને? x બરાબર, અને આગળ
શું લખીશું 0.1 માઇનસ એક્સ અને 0.10 માઇનસ એક્સ પડી ખબર તો કહું છું તો અહીં લખી દઈશું 0.10 માઇનસ એક્સ અને એનો સ્ક્વેર અને આનો સ્ક્વેર હવે તમને આ કેસી તમને આપ્યું છે કેટલું છે કેસી યાદ કરો 4 તો 4.24 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर એટલે આમાં લખવું પડે આમ તો અને 0.10 માઇનસ એક્સ કા સ્ક્વેર હવે અહીંથી જો આ દેખાયું આ એક ઇક્વેશન છે શું છે આ એક ઇક્વેશન હોય એક અનનોન હોય વી કેન સોલ્વ ઇટ આવો તમને 9 થી કહેતો આવ્યો છું તો આગળ એક જ અનનોન છે કયો ખાલી મતલબ વી કેન સોલ્વ ઇટ and once you solve it you will get the value of x અને x મળશે એટલે આગળની બધી વસ્તુ મને મળી જશે આગળ ટ્રાય કરજો નાડો બધું તમને સમજાશે બરાબર છે અહીંથી ટ્રાય કરજો બાકી બુકમાં આગળ આપ્યો છે પણ પેલું ફીલ ખબર પડી ગઈ વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ કેસ ઇન બધું ટ્રાય કરજો નાડો તમને સમજાશે બરાબર છે કઈ રીતે સોલ્વ કરવાનું કઈ રીતે ઓકે આટલું રાખીએ અત્યારે બરાબર છે આપણે રાખવું જ પડશે ઇન્સ્પિરેશન ને મોટિવેશન